Hello, dear children. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. Okay, I hope you all are enjoying your home at your home. How with your studies? I hope you all are doing very well for your MEA exam. And today is our revision part chapter 2. In that we are going to revise chapter 2 revision. Okay, before that we will do our regular activities. Okay, now first activity is shloka of the day. You have to close your eyes and join your hands. First you have to listen whatever I am speaking here. Then after that you have to pause the video and you try to speak the shloka. Okay, today's shloka on Lord Ganesha. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakareshu Sarvada. Okay, meaning of this is, O Lord, with a curved trunk and huge body and the brilliance of million suns, I seek your blessings to grace my new beginning and remove all the obstacles as begin to work. Okay, अभी गणेश जी को बोल रहे हैं कर्व्ड ट्रंक, जो ऐसे उसका जो ट्रंक होता है वो कर्व होता है वैसे वाले, और हजारों सूर्य की तेज वाले गणेश जी, मैं जो बिगिनिंग में जो स्टार्ट कर रहा हूँ वर्क में, उसमें कोई भी कठिनाई नहीं आए, ऐसे मुझे ब्लेसिंग्स करो, वो अभी बोल रहे हैं. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा. ओके, after our shloka every day we speak one thought. I hope you all are writing that thoughts in our SS last page, SS book number 5 last page. I hope you all are writing these thoughts for your improving moral values. Thought of the day: lost time is never found again. जो टाइम हम खो डालते हैं वो कभी फाउंड मीन्स ढूंढ नहीं सकते हैं. हाँ, लॉस्ट टाइम इज नेवर फाइंड अगेन. ओके, इसलिए हमें टाइम को बहुत ही प्रेशियस से रखना चाहिए, यूज़ करना चाहिए. नाउ इन माय लास्ट वीडियो क्लास आई इंट्रोड्यूस you one activity. Today is activity number 2. Yesterday we made word from given word using that letters. Okay, I gave you a expansion word. I hope you all did it very properly in your 6 number notebook. Today's is check your word power. Means आपका word power कितना है आपको चेक करना है. I am going to give you alphabet A. On alphabet you have to write minimum 10 and 20. Maximum 20 you have to write. I wrote as A for actual, apple, apron, at last, around, along, announce, arrive, atmosphere, alive, activity. These words I write with the starting word A. Then I am going to give you a word B. You have to start word with a B like that: buffalo, burn, born, begin, borrow, like this. That word should be start with B. This is about our word power. I hope you all will like this activity and you will do it. From this activity you will improve your word power.
इस एक्टिविटी करने से आपका वर्ड पावर बढ़ जाता है, आपका वोकैबुलरी भी बढ़ जाती है. ओके, नाउ इन आवर यस्टरडे क्लास वी रिवाइज्ड chapter 1 we revised, and today I am going to revise chapter 2. In chapter 1 we revise universe and the earth. In that, universe is heavenly body. About our heavenly bodies, earth is a living planet. Why it's called as a living planet, everyone knows it. Okay, now come to the our chapter 2 revision. Chapter 2, page number 13. The earth a living planet. The earth our home. Earth is our home. Human beings, animals, birds, insects, and millions of trees and or small plants live on the earth, which is beautiful living planet of the solar system. The earth is a spherical in shape and very big in size. It is made up of land, water and air. Nearly 70% of the earth is covered with water. From the space, the earth looks like a round blue marble. Due to presence of water on it in large quantity, the earth is called a blue or a watery planet. Pie chart of land and water on earth. Okay, this is pie chart of land on water on earth. Lithosphere. The upper uneven surface of the earth is known as the lithosphere. There are high mountains, plateaus, plains, rivers and deep oceans on the earth. Okay, now I am going to explain you page number 13. In this page they are given about our earth. Earth is our living planet. Earth is our home. It is a living planet. Picture shows earth is round. Picture shows that earth is in round and it is in shape in spherical. इसका shape जो है spherical size में है. The earth is a unique planet. Okay, क्यों unique planet है? Because यूनिवर्स में सिर्फ हमारे पास हम अर्थ का जो ग्रह है उसी में हम रह सकते हैं, बाकी सब में हम रह नहीं सकते. व्हाई? बिकॉज बाकी जो 7 प्लैनेट है वो सभी प्लैनेट में हम जिंदा रहने जैसे कोई भी वहाँ पे सुटेबल पॉइंट्स नहीं है. लाइक वाटर, एयर एंड फूड वहाँ पे हमें नहीं मिलती है. इसलिए लाइवली थिंग्स कहाँ पे रहेंगे? ओनली अर्थ पे रहेंगे. कहाँ पे रहेंगे हम? अर्थ पे रहेंगे. अर्थ हमारा कितना बड़ा है और कितने परसेंटेज में हमारा वहाँ पे वाटर लिया गया है? अर्थ जो है यहाँ पे 70% ऑफ वाटर है. देखो बेटा, 70% ऑफ वाटर है, बाकी जो 30% है वो लैंड है. पूरा हमारा अर्थ ब्लू जो भी है ये सभी वाटर है और ये जो ब्लू वाइट कलर दिखता है ये सिर्फ हमारा लैंड है. इसलिए हमारे अर्थ जो प्लैनेट है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लू वाटरी प्लैनेट और अ राउंड ब्लू मार्बल कहते हैं. जब हम स्पेस से अर्थ को देखेंगे तो पूरा हमारा अर्थ ब्लू कलर का दिखता है. बिकॉज ऑफ लार्ज quantity of water is on our earth, so it looks like a blue planet. Okay, how it looks? Blue watery planet लगता है. लिथोस्फीयर जो है एरिया जो हमारे पृथ्वी के ऊपर वाला सरफेस है, अनइवन सरफेस. अनइवन मीन्स ऊंचा और नीचे में जो फ्लैट वाला नहीं होता है, ऐसे को हम अनइवन स्पेस बोलते हैं. उसमें हम माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स एंड डीप ओशियंस को हम देख सकते हैं. किस एरिया में? लिथोस्फीयर एरिया में. ओके, ये जो लिथोस्फीयर एरिया है, ये लिथो मीन्स स्टोन.
स्टोन से बना हुआ होता है। ये जो हमारा एरिया होती है ये स्टोन से बना हुआ हमारा एरिया है। इसको हम इसलिए लिथो मीन्स स्टोन, हम इसलिए इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14। Atmosphere. Atmosphere, the earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. We cannot see but feel the presence of air, which is essential to live. There is nearly 21% oxygen gas, which is required by all living beings to breathe. Okay, my dear children, listen this properly. How much percentage of oxygen on earth? Only 21% of earth have that oxygen. Nowadays you are listening that news everywhere, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे आपको सुनने को मिल रहा है। क्यों कमी हो रही है? ऑक्सीजन हमें कौन देते हैं? प्लांट्स हमारा एरिया को, एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करते हैं, उसी से हमें ऑक्सीजन मिलते हैं। और हम प्लांट को ही कट कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? इसलिए फॉरेस्ट को हम डिफॉरेस्ट्री कर रहे हैं, इसलिए हमें ऑक्सीजन मिल रही है। जितना भी 21% ऑक्सीजन था वो भी अभी बंद हो रहा है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। वी कैनॉट सी बट फील प्रेजेंस ऑफ एयर विच इज़ एसेंशियल टू लिव। हम हवा को छू नहीं सकते और देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं ना। जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम बाहर जाते तो पेड़ का पत्ते ऐसे ऐसे हिलने लगती है तो हम उसको फील कर सकते हैं ना, उसको हम प्रेजेंस ऑफ एयर कहते हैं। ओके, नाउ ये जो एटमॉस्फेयर है ऑक्सीजन गैस से कवर्ड होता है। नाउ हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर मीन्स पत्थर वाला एरिया और एटमॉस्फेयर मीन्स ऑक्सीजन वाला एरिया, एयर एंड ऑक्सीजन वाला, और हाइड्रोस्फीयर मीन्स नियरली 71 पानी वाला एरिया। नियरली 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ द वाटर एंड द रिमेनिंग 31% इज लैंड। The seas, lakes and the other water bodies on the earth's surface taken collectively are known as a hydrosphere. Okay, dear children, listen. किसको हम हाइड्रोस्फीयर बोल रहे हैं? यहाँ पे जहाँ पे वाटर बॉडीज होते हैं उसको हम कौन सा एरिया कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर एरिया कहते हैं। जहाँ पे वाटर बॉडीज होते हैं वहाँ पे। रिमेंबर, potable water is a precious and limited. We should not pollute the water. अभी हम पोर्टेबल वाटर मीन्स ड्रिंकिंग वाटर। हम ओशियन में 70% ऑफ अर्थ कवर्ड विथ वाटर, वो सभी हम वाटर पी सकते हैं? नहीं। जितना हमारा पीने लायक नदी के पानियाँ हैं उसको हम पोल्यूट नहीं करेंगे। आपने देखा होगा क्लीन गंगा करके एक नेशनल जियोग्राफिक और एनिमल प्लैनेट्स में एक प्रोग्राम आता है, उसमें गंगा जो हमारा रिवर है, पोर्टेबल वाटर रिवर है, उसको हमने कितना गंदा करके रख दिया है, बहुत उसको पोल्यूट कर दिया है। ऐसे हमें पोल्यूट नहीं करना है बिकॉज हम ओशियन का पानी नहीं पी सकते हैं। इसलिए हमें ये जो पोर्टेबल वाटर है उसको बहुत ही प्रेशियसली रखना चाहिए। ओके, वी शुड नॉट पोल्यूट द वाटर। वो भी कौन सा वाटर को? पोर्टेबल ड्रिंकेबल वाटर को हम ऐसे नहीं करेंगे। नाउ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, रोटेशन। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस इन 24 hours which is called the daily motion of the earth or the rotation of the earth. The earth rotates on its axis from west to east. सुनो मेरे बच्चे, जो है रोटेशन, द अर्थ स्पिन लाइक अ टॉप अराउंड एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस। यहाँ पे हमें अर्थ अपने ही पथ पे घूमने लगता है, उसको हम इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? हम इमेजिनरी लाइन है जो, उसको हम एक्सिस बोलते हैं। अर्थ अपने आप घूमता रहता है, अपने आप घूमता रहता है। किसके ऊपर? अपना जो पथ है एक्सिस के ऊपर। कितना टाइम लेता है?
24 आवर्स टाइम लेता है, उसको हम क्या करते हैं, रोटेशन। द रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट। इससे हमें क्या कॉज होते हैं, रोटेशन से हमें क्या होते हैं, डे एंड नाइट होते हैं। दिस इज कॉल्ड अ रोटेशन। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस इन 24 आवर्स which is called the daily motion of the earth or the rotation of the earth. rotation बोले तो क्या है, ये जो पृथ्वी अपना ही पथ पे एक्सिस पे जो घूमती है टिल 24 आवर्स तक, उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। नाउ कम टू द रेवोल्यूशन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365.14 day 1 year, which is also called the annual motion of the earth on the revolution of the earth. The moon is only natural satellite of the earth which revolves around the earth once in 28 days. पहले रोटेशन टाइम क्या होता है, 24 आवर्स होता है। अभी रेवोल्यूशन लाइक द अदर प्लैनेट्स द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पहले रोटेशन में अर्थ अपने ही एक्सिस में अपने आप को घूमती रहती थी। अभी हमारा जो पृथ्वी है सन को चक्कर लगाती है, हाँ, अपना ऑर्बिट पे। अपना मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड अ रेवोल्यूशन। एक्सिस में चलती है तो उसको हम रोटेशन कहते हैं, ऑर्बिट पे चलती है तो रेवोल्यूशन कहते हैं। कितना टाइम लेती है, 365.14 डे लेती है, 1 ईयर हमें लेती है। डेज 1 ईयर गो अराउंड द सन वंस। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेस डिफरेंट सीजन। 24 आवर्स का ये जो है उससे हमें डे एंड नाइट होती है, और ये जो रेवोल्यूशन है इससे हमें कॉजेस क्या होते हैं, सीजन्स हमारे चेंज हो जाते हैं। थ्रू आउट द ईयर एज द अर्थ ऑर्बिट्स द सन इट रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट। जैसे सन के सामने हमारे अर्थ जाती है तो उस टाइम समर हो जाती है। अकॉर्डिंग फ्रॉम द हीट ऑफ द सन टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन। हमारा डिस्टेंस अर्थ जितना नज़दीक होते जाता है उतना हमारा समर बढ़ती है, जितना दूर होता जाता है हमारा विंटर होती है। दिस कॉजेज चेंज द ऑफ सीजन सच एज अ समर, मानसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। What causes the seasons? Revolution causes the season. What causes the day and night? Rotation causes the day and night. I hope you all will read this very properly and you will prepare for your MEA test. So today I am going to send you 7 or 8 question fill-ups. You have to do it in your 6 number notebook. Okay, I hope you all will do it. Take care. Bye bye.